امریکہ نے ایران میں گرنے والے اپنے جنگی طیارے کے لاپتہ افسر کو کامیابی کے ساتھ بازیاب کرا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی، اپنے بیان میں کہا ہم نے اسے حاصل کر لیا۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکی فوج نے تاریخ کے جرأت مندانہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں سے ایک انجام دیا اور ہمارے ایک اہم افسر جو ایک معزز کرنل بھی ہیں ان کو بحفاظت واپس لے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ فوجی F-15 ایگل طیارہ گرنے کے بعد ایران میں لاپتہ ہو گیا تھا اور تقریباً 2 دن تک ایرانی حکام سے بچتے ہوئے روپوش رہا۔ بعد ازاں امریکی فورسز نے ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک آپریشن کے ذریعے اسے نکال لیا۔ ریسکیو آپریشن رات کی تاریکی میں کیا گیا جس کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں معاہدہ نہ ہوا تو مکمل طور پر جہنم برسا دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ یاد رکھیں جب میں نے امریکہ کو معاہدہ کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن دیے تھے انہوں نے کہا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے، ان پر جہنم برسانے کے لیے 48 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مرتبہ ایران کو جنگ بندی معاہدہ کرنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے بدترین کارروائیوں کی دھمکی دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ معاہدہ نہ کرنے اور آبنائے ہرمز نہ کھولنے کی صورت میں ایران کے بجلی گھروں، تیل کے کنووں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس پر حملے کیے جائیں گے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اہم پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 5 افراد شہید جبکہ 170 اہلکار زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ جنوبی صوبے خوزستان کے گورنر کے نائب سیکیورٹی انچارج ولی اللہ حیاتی نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ماشہر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا۔ اب تک ان حملوں کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ دونوں تنصیبات ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت کا اہم حصہ ہے جہاں تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ بیان میں پیٹرو کیمیکل اسپیشل اکنامک زون آرگنائزیشن نے کہا کہ صنعتی علاقے میں کام کرنے والے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے۔ ایران نے کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا نے وزارت مالیات کے دفتر میں نقصان کی ویڈیو جاری کر دی۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو نقصان پہنچنے کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ پاسداران انقلاب ایران نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کا دائرہ بڑھانے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے خطے کو امریکہ کے لیے دوزخ میں تبدیل کر دیں گے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی صدر ٹرمپ کو کہا کہ بھولنا مت اگر جارحیت بڑھائی تو پورا خطہ تمہارے لیے دوزخ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کو شکست دینے کا وہم پہلے ہی دلدل میں تبدیل کیا جا چکا ہے اور اب اس میں دھس جائے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ایک نئے خطرناک موڑ میں داخل ہو گئی جہاں اسرائیل ایران کے توانائی مراکز پر بڑے حملوں کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی دفاعی عہدیدار کے مطابق ایران کے توانائی مراکز پر حملے کے فیصلے کے لیے اسرائیل کو اب امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے انکشاف کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے منظوری مل گئی تو آئندہ 1 ہفتے کے اندر ایران کے اہم توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جس کے خطے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر دفاعی ماہرین کے مطابق اگر اسرائیل نے ایران کے تیل اور گیس کے مراکز پر حملہ کیا تو جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ حق 4 کی 94ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کے انڈسٹریل اور فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ فوجی کمانڈرز کے جمع ہونے کے مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آپریشن میں صبح سویرے ہی کارروائیاں شروع کی گئی۔ ان حملوں میں تل ابیب سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے جنوب، وسط اور شمال میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بیلسٹک میزائل، ٹھوس اور مائع ایندھن، پروجیکٹائلز، خرمشہر، خیبر شکن اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ خودکش ڈرون سے بھی اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے اتحادی فورسز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یمنی جنگجو گروپ نے جنوبی مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر بیلسٹک میزائل حملے کیے۔ عراقی مزاحمتی گروپس نے ابھی 19 میزائل حملے کیے۔
ईरान जंग में अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। तेल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। इस झुंझलाहट की वजह अमेरिका में बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका में तेल की कीमतें फी गैलन $4.10 तक पहुँच गयी। रॉबर्ट एलिच की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले हफ्ते के मुकाबले में 12 सेंट का इजाफा है, जो गैर मामूली इजाफा है। ईरान जंग के बाद से तेल की कीमतों में 37% तक इजाफा हो चुका है। कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह खलीज फारस में हुर्मुज़ के तंग रास्ते की तकरीबन बंदिश है। रियासत कैलिफोर्निया में फी गैलन तेल की सबसे ज्यादा औसत कीमत $5.92 के करीब है, जबकि ओक्लाहोमा में सबसे कम कीमत $3.29 फी गैलन है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मिस्र के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत और कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद इसहाक डार और बहरीन के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिदुल ज़ियानी के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वजीर आजम ने कशीदगी के फौरी खात्मे की जरूरत पर जोर देते हुए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत को उजागर किया। इसहाक डार ने अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती इक़दाम का भी जिक्र किया। बहरीनी वजीर खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकालमे और सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल जहती फोरम्स, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि दमिश्क में यूएई सफारत खाने में तोड़ फोड़ काबिले मुजम्मत है। ऐसी कार्रवाइयाँ सफारती मिशन के तकद्दुस और सलामती की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारती मिशन को बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ऐसे वाक़यात रियासतों के ताल्लुकात और वियना कन्वेंशन के असूलों को नुकसान पहुँचाते हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन और सफारती असूलों के साथ अपने अज़्म का इयादा करता है। पाकिस्तान ने अक़वाम के दरमियान अमन और इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। आज ईस्टर है। सबसे पहले तो सारे क्रिश्चियंस तो हैप्पी ईस्टर। आज हम लोग सारे चर्च आया, हम पहले आज सारे दुआ करें। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, चर्च में आते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, दुआ करते हैं। हमारे खुदावन जी उठे हैं आज का दिन, तो हम बड़े खुश हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ईस्टर मना रही है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादत के प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए, जिसमें मुल्की और खित्ते की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईस्टर पर मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में दुआ की है कि ये खुशियों भरा दिन दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। वजीर आजम ने कहा, ईस्टर हमें कुर्बानी, दरगुजर, रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है, जिन्हें अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की मसीही बिरादरी मुल्क की तरक्की में फाल और काबिल फख्र किरदार अदा कर रही है। ईस्टर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। मुल्क के बालाई इलाकों में बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। बारिश के बाइस पोसीदा मकानात की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 25 मार्च से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक जबकि 105 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद में 23 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। जख्मी अफराद में 16 खवातीन और 45 बच्चे शामिल हैं। हालिया बारिशों से 442 घरों को नुकसान जबकि 60 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए। हादसात बन्नू, एबटाबाद, मर्दान, बाजोड़, हंगू, मोहम्मद, कोहाट, शुमाली वजीरिस्तान, पिशावर, खैबर, नौशहरा में पेश आए। जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंदवाना, गोमल, जाम रोड 4 रोज बाद भी बहाल न की जा सकी। मरी में भी झीका गली चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंड स्लाइडिंग की नजर होने लगा। मुतअद्दिद घरों की दीवारों, छतों और बरामदों में बड़े शिगाफ पड़ गए। दर्जनों दरख्त गिर गए। इंतजामिया ने मुतासरा इलाके को खाली करने का हुक्म दे दिया। मसाजिद में भी इलानात होने लगे। बालाई वादी नीलम के गाँव बरनाट में शदीद बारिश के बाइस 10 से जायद रिहायशी मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। PDMA के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इजला में बारिशों का नया सिलसिला 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महंगाई के बाइस लोगों से सादगी अपनाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाइस अवाम को रिलीफ मिले। ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद है कि किरायों में इजाफा न हो। सब्सिडी से मुतल्लिक अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खित्ते की सूरत हाल के बाइस जरूरी है अवाम भी ताउन करे। वज़ीर आला सिंध का कहना था, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत जरूरी है। हर गरीब आदमी को पेट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी फराहम करेंगे। बोले, इंटरसिटी बसों को महंगा डीजल का खर्चा हुकूमत सिंध बर्दाश्त करेगी। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए हम आवाम को फायदा दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बन्नू शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहिस्सी का वाज़ेह सबूत है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुख्तलिफ अजला में मुतवक्के बारिशों के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने तमाम मुतलका इदारों को अलर्ट कर दिया। बाज़ मुकामात पर यालाबारी की पेशगोई की गई है। उन्होंने कहा कि मुमकिना मौसमी सूरत हाल के पेश नजर शहरी इलाकों में निकासियाब के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि हसास ढांचों और खड़ी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतलका इदारों को निकासियाब के निज़ाम को मजीद मुअस्सर और फाल रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए हदायत जारी की गई है, ताकि अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। हुकूमत सिंध किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी मुमकिना नुकसान के अजाले के लिए मुअस्सर लाइहा अमल तरतीब दिया जा रहा है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का खदशा। पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन ने घी और तेल महंगा होने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन की एडवाइजर कायनात रजा ने घी और तेल की कीमतों में 100 से 150 रुपए तक इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से मिलों की लागत में बेपना इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से घी मिलों की ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन लागत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हुआ है। मार्केट में नया स्टॉक आने पर कीमतों की कोई गारंटी नहीं दे सकते। कायनात रजा ने कहा कि हुकूमत अवाम को मुश्किल से बचाने के लिए फिल फॉर पैनल बनाए ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 15 तंदूर सील करके 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इतवार को जिले इंतजामिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हुकूमती रेट्स पर रोटी और नान की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी है। खसूसी मुहिम के तहत दूसरे रोज भी शहर भर में 138 तंदूरों की इंस्पेक्शन की गई। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने सरकारी निर्खों से जायद कीमत वसूल करने पर 18 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत 20 रुपए और नान की कीमत 25 रुपए मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा निर्खों से जायद वसूली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडीज ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 156 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 50, डियान फोस्टर ने 44 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 2, डैरल मिचेल 19 और अब्दुल्ला फजल ने 23 रन बनाए। रिचर्ड ग्लेसन, फहीम अशरफ और सलमान इरशाद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हाज 36 गेंदों पर 70 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदर अली 26 और मार्क चैपमैन 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डेवन कॉनवे 6 और मोहम्मद फाइक ने 19 रन बनाए। मोहसिन नकवी की सदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 88वें इजलास में माली साल 2024-25 की सालाना ऑडिट और मालियाती स्टेटमेंट्स की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। इजलास में आईसीसी ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक पीसीबी के प्रोसीजरल रूल्स में तारामीम, सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ क्रिकेट स्टेडियम जद्दा की तरक्की के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी और लाहौर के जोन्स की जुग्राफियाई हदूद की रोशनी में दोबारा हदबंदी उन नामों पर नजरसानी की मंजूरी भी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मार्केट बन चुकी है और मुस्तकबिल करीब में वो अब वक्त दूर नहीं जब पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। उन्होंने मजीद कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की मजबूती में ही कौमी टीम की कारकर्दगी की बुनियाद है और इसी सिमत में इस्लाहात और तरक्याती इक़दाम जारी रहेंगे।